Good morning, children. In previous chapter, we studied polynomial and types of polynomial according to sides and according to degree. Today, we study about remainder theorem. Okay, clear? Let us start. एक मिनट हो गया. Before study remainder theorem, we study division algorithm in polynomial. Clear? Division algorithm in polynomial. Let px and gx be two given polynomial such that degree px greater than and equal to degree gx. Clear? Degree px greater than and equal degree gx. On dividing px by gx, let qx be the quotient and rx be the remainder. According to division algorithm, we know that dividend equal divisor multiply quotient plus remainder. Clear? px equal gx multiply qx plus rx. Rx is a remainder. Clear? I am giving an example. Px divided by gx. Our quotient is qx and remainder is rx. In px, if we divide gx, then after quotient is qx and remainder is rx. According to division algorithm in polynomial, px is a dividend, gx is a divisor, and qx is a quotient and rx is a remainder. Clear? So we can write px equal gx multiply qx plus rx. Rx is a remainder. Clear? I am giving an example. Let us suppose that our equation is 3x to the power 4, 3x to the power 4 minus 4x cube, 4x cube minus 3x minus 1, minus 3x minus 1 divided by x minus 2. In this equation, we see that x minus 2, but here our term is 3x to the power 4. So, if we multiply x multiply 3x to the power cube. In this expression, x to the power 3 and x to the power 1
here base are same, so power must be equal. Clear? We also study in exponents. Our expression is 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. If we divided by x minus 2, then our remainder is 3x cube plus 2x square plus 4x plus 5, and the remainder is 9. Clear? If we verify x minus 2 multiply this term 3x cube plus 2x square plus 4x plus 5, then we get 3x to the power 4 minus 4x to the power cube minus 3x minus 10 plus 9. Plus 9 is our remainder. Clear? So our result is 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x or minus 10 plus 9 is minus 1. Normal division all are studied in class 7, 8, but our main topic name is remainder theorem. Clear? Division algorithm in polynomial is not part of our syllabus, so our main part is remainder theorem. Remainder theorem, in remainder theorem, let Px be a polynomial, Px be a polynomial of degree 1 or more, and alpha be any real number. If Px is divided by x minus alpha, then remainder is Px. I am giving an example. Our example is x to the power 4, x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square, 2x cube minus 3x square plus x minus 1 plus x minus 1. Find the remainder when the polynomial Px equal x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1, and divided by x minus 2. Gx is x minus 2. इस क्वेश्चन में मेरा एक्सप्रेशन है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस x माइनस 1. इस एक्सप्रेशन में यदि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. So gx, our gx is 0. यहाँ पर मेरा इक्वेशन है gx इक्वल x माइनस 2. x माइनस 2 करके कोई भी इक्वेशन रहे, सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे. x का जब वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू निकलेगा उसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, और यदि इसका सॉल्यूशन 0 निकलेगा तो वह हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर होगा. लेकिन x का वैल्यू 2 पुट करने के बाद जो मेरा सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा, मेरा लास्ट रिजल्ट जो होगा वही मेरा रिमाइंडर होगा. क्लियर? तो gx यदि हम लिखते हैं, यहाँ पर gx 0 लिखते हैं इक्वल x माइनस 2 का साइन माइनस है, लेफ्ट साइड लाइन तो प्लस होगा, तो 2 इक्वल x. This is the value of x equal to. अब यहाँ पर जो वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को यदि इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं और जो मेरा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा. तो इसमें हम क्या देखें?
हम देखें कि हम विदाउट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं किए हैं। हम जैसे फर्स्ट आपको बताए थे कि डिवाइड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं रिमाइंडर, जो आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं। उसकी जरूरत यहाँ नहीं है, उसका यूज यहाँ नहीं करना है। यहाँ यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम का। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी जिस टर्म से हमको डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा, सबसे पहले 0 लिखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद उसका जो कैलकुलेशन यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मेरा रिमाइंडर होगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम का। तो हम gx 0 लिखे, 0 इक्वल x माइनस 2, और 2 का साइन माइनस है, इसको इस साइड लाए तो प्लस हुआ, x इक्वल 2 निकला। अब मेरा वैल्यू क्या निकला? x इक्वल 2। इस वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। कल भी हम बताए थे कि P2, x का वैल्यू मेरा 2 है, जैसे प्रीवियस क्लास में हम वैल्यू देके निकाले थे, आपको बताए थे। तो इसमें x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ इस वैल्यू को पुट करेंगे। 2 to the power 4 plus 2 multiply 2 to the power 3 minus 3 multiply 2 to the power 2 plus 2 minus 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, तो हम भी क्या किए, x के बदले 2 को पुट किए, और जहां जहां x है, जैसे x to the power 3 है तो x के बदले 2 पुट किए, 2 का पावर 3 दिए, 3x माइनस 3x स्क्वायर है, x के जगह 2 पुट किए, 2 का पावर 2 दिए, और फिर x माइनस 1 है, 2 माइनस 1। इसका कैलकुलेशन करेंगे। 2 to the power 4, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 यानी 16 प्लस 16 माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। According to Verma's rule, first we add 16 plus 16 plus 2। नॉर्मली स्टूडेंट इस पॉइंट पे आके मिस्टेक करता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ माइनस करेगा, कहीं कभी प्लस करता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग का जो वर्मास रूल है BODMAS में फर्स्ट एडिशन होता है, तो जितना भी टर्म का डिजिट का साइन प्लस है सबको हम ऐड करेंगे। प्लस जैसे 16 है प्लस 2 है, तो 16 प्लस 16 प्लस 2 इक्वल 34, और माइनस 12 और माइनस 1। किसी भी एक्सप्रेशन में जितना भी डिजिट का साइन माइनस होता है, हर एक माइनस में जो माइनस का जो साइन है, जिस डिजिट का जितना भी माइनस है सबको हम लोग ऐड करते हैं और साइन देंगे माइनस का। तो माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13, 34 माइनस 13 इक्वल 21। यहां पर मेरा कैलकुलेशन निकला 21। सो हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 21। यही जो लास्ट का डिजिट है यही आपका रिमाइंडर निकला। यही आपका रिमाइंडर है। तो हम क्या किए, जिससे हमको डिवाइड करना है, यानी डिवाइजर जो आपका है उसको इक्वल 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। जो x का वैल्यू निकलेगा उसको इस एक्सप्रेशन में, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे क्वेश्चन में अलग अलग एक्सप्रेशन लिखिएगा, तो जो भी उसमें दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे x के वैल्यू को, और लास्ट में जो सॉल्यूशन निकलेगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। सेकेंड एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे रिमाइंडर निकालेंगे इसमें भी। सेकेंड एग्जांपल है 4x³ माइनस 12x² fx
इक्वल 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 प्लस 14x माइनस 3। इसमें हमको डिवाइड करना है gx x माइनस 2x माइनस 1, gx इक्वल 2x माइनस 1 और रिमाइंडर निकालना है। यानी आपका क्वेश्चन करता है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इफ f(x) इक्वल 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। यानी इस एक्सप्रेशन में यदि 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि जो भी जिससे भी डिवाइड करने के लिए कहें सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? यहाँ पर 0 लिखेंगे gx 0 इक्वल 2x माइनस 1 एंड 1 इक्वल 2x, 1 का साइन माइनस है, राइट साइड में प्लस हो गया, 2x 2 मल्टीप्लाई x, मल्टीप्लाई को इस साइड लाइएगा डिवाइड होगा 1/2x, x का वैल्यू 1/2 निकला। अब इस वैल्यू को यहाँ पर x के पोजीशन में पुट करेंगे। जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा नंबर होल नंबर निकला था, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर निकल रहा है, 1/2 फ्रैक्शन में निकल गया। तो फ्रैक्शन में निकल गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन को ही हम पुट करके सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो मेरा कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वही मेरा रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा। क्लियर? P x का वैल्यू था 1/2, यहाँ पर x की जगह 1/2 है। इस वैल्यू को यहाँ जहां जहां x है इसके स्थान पे आप पुट कीजिए। जैसे कि 4 है, 4 मल्टीप्लाई x क्यू है, x का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का पावर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1/2 है, 12x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 और माइनस 3। x का वैल्यू मेरा 1/2 निकला था, उस वैल्यू को x के स्थान पे हम पुट करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, ये होगा 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2 2 जा 4 2 माइनस 3। क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे और 4 मल्टीप्लाई 1/8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ पर क्या निकला 1/2 और माइनस यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 1/2 का साइन प्लस है और यहाँ 2 का साइन प्लस है। यहाँ 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6, फ्रैक्शन का एडिशन किया। यहाँ पर 1 का साइन प्लस है और 4 का साइन प्लस है, 4 प्लस 1 5 माइनस 6 4 plus 1 5 and minus 6 minus 12 by 2, 5 minus 12 equal minus 7 by 2. This is required remainder. तो इसमें हम क्या देखें, रिमाइंडर थ्योरम में देखें, जब किसी भी एक्सप्रेशन में किसी नंबर से जब डिवाइड करना है तो सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है
उसको जीरो करके x का वैल्यू निकाले और x के वैल्यू को जब हम एक्सप्रेशन में पुट किए तो एक नंबर निकला, रेशनल नंबर निकला, जो भी निकले डिवाइड पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे और जो भी निकलेगा वही मेरा x का वैल्यू होगा। क्लियर? तो यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के में निकालेंगे हम लोग। इसी में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको चेंज करके देगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेगा। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक थोड़ा अलग टाइप रिमाइंडर थ्योरम में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा अलग है। नॉर्मल रिमाइंडर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि x का वैल्यू निकालेंगे जीरो लिखकर, और जो x का वैल्यू निकलेगा वही एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और जो मेरा सॉल्यूशन का रिजल्ट होगा वही रिमाइंडर। जस्ट इसी से थोड़ा सा अलग टाइप का है। इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, leave the same remainder. When divided by x minus 2, find the value of a, also find the remainder in each case. यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है। हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को fx लिखते हैं 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। सेकेंड एक्सप्रेशन gx है। gx इक्वल x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। दोनों एक्सप्रेशन में क्वेश्चन कहता है कि x माइनस 2 से ही डिवाइड करना है। क्लियर? दोनों एक्सप्रेशन में x माइनस 2 से ही डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद कंडीशन है कि रिमाइंडर सेम बचता है। तो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है। इस a का वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर? जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम किए थे वैसे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। दोनों एक्सप्रेशन में हमको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। जैसे आपको हम बताए थे कि x माइनस 2 से डिवाइड करना है। x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, यानी x का वैल्यू 2 निकला। क्लियर? इसमें x माइनस 2 इक्वल 0 है तो x का वैल्यू 2 है। अब इस 2 वैल्यू जो निकला है इसको दोनों एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है fx है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। क्लियर? इसमें x का वैल्यू 2 पुट करना है। f2 x के जगह पर क्या पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 प्लस a, ध्यान दीजिएगा a है, a मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। क्लियर? 16 प्लस 2 टू जा 4a प्लस 6 माइनस 5। 4a 16 का साइन प्लस है और 6 का साइन प्लस है। 16 प्लस 6 22 माइनस 5 इक्वल 4a 22 माइनस 5 प्लस 17। मेरा फर्स्ट निकला 4x प्लस 4a प्लस 17। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर a है तो a करके ही कुछ क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए 4a प्लस 17। अब यही वैल्यू x का वैल्यू 2 को सेकेंड एक्सप्रेशन gx करके जो है gx में हम पुट करेंगे। gx एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। यहाँ x के बदले में 2 पुट करना है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में जो हम पुट किए थे
यहाँ सेकेंड में भी पुट करना है 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस a प्लस 4 माइनस 4 प्लस a 8 प्लस 4 12 माइनस 4 8 प्लस a। ये मेरा सेकेंड निकला 8 प्लस a। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कंडीशन था कि रिमाइंडर सेम बचता है। फर्स्ट मेरा निकला 4a प्लस 17, क्लियर, और सेकेंड निकला 8 प्लस a, क्लियर। क्वेश्चन था कि यदि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम निकलेगा। यह जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम बताए थे कि जो वैल्यू निकलता है वही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ तो वैल्यू निकला 8 प्लस a और सेकंड वैल्यू निकला फर्स्ट वैल्यू निकला 4a प्लस 17 एंड सेकंड वैल्यू निकला 8 प्लस a। यह रिमाइंडर है। क्वेश्चन है कि रिमाइंडर सेम बचता है, सेम होना चाहिए, सेम मींस इक्वल, यानी दोनों रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्लियर। So according to question 8 plus a equal 4a plus 17। एक का साइन प्लस है, उस साइड ले जाएंगे माइनस होगा, 17 का साइन प्लस है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस होगा। 8 माइनस 17 इक्वल 4a माइनस a। 8 माइनस 17 माइनस 9 इक्वल 4a माइनस a, 3a एंड 3 मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लाइन डिवाइड होगा, माइनस 9/3 इक्वल a। क्लियर। a का वैल्यू -3 हम निकालेंगे, क्लियर। क्वेश्चन में हम रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में था कि सेम रिमाइंडर बचता है। तो जब फर्स्ट में x का वैल्यू 2 पुट किए तो मेरा रिमाइंडर निकला 4a प्लस 17 और सेकेंड इक्वेशन में जब पुट किए तो वैल्यू निकला 8 प्लस a। क्योंकि मेरा क्वेश्चन कहता है कि रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, तो रिमाइंडर सेम मींस क्या, रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए, इसलिए 8 प्लस a इक्वल 4a प्लस 17 और इसको जब हम सॉल्व किए तो a का वैल्यू -3 निकला, क्लियर। अब क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड आल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। दोनों केस में रिमाइंडर का वैल्यू निकालिए। रिमाइंडर इन ईच केस क्या होगा, मेरा वैल्यू निकला था a इक्वल -5। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों में किसी इक्वेशन में हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है कि रिमाइंडर सेम बचना चाहिए। रिमाइंडर सेम बचेगा हम किसी में पुट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड। यहाँ पर जैसे छोटा इक्वेशन ही हम लेते हैं, gx आपका है x³ प्लस x² माइनस 2x। यहाँ a का वैल्यू हम निकाले हैं -3। यहाँ एक प्लस a जो है इसके जगह पे -3 लिखे, क्योंकि a का वैल्यू क्या है -3 जो हम निकाल चुके हैं, और डिवाइड करना था हमको किससे, x -2 से, क्लियर। तो जो मेरा इक्वेशन निकला था, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेरा इक्वेशन था 17 प्लस a और सेकेंड इक्वेशन था 8 प्लस a। यह दोनों मेरा क्या था, रिमाइंडर था। इसमें किसी में a का वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे फर्स्ट में पुट करते हैं तो 17 प्लस a, 17 प्लस a के जगह -3 लिखेंगे, यानी 17 माइनस 3 इक्वल 14। सेकेंड में 17 प्लस, सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ पे 4a इक्वेशन था, ध्यान दीजिएगा 4a है, 4 से मल्टीप्लाई होगा -12। 17 माइनस 12 इक्वल 5।
सेकेंड में पुट कीजिए, यहाँ पर 8 प्लस ए है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 8 प्लस ए का वैल्यू -3 है इक्वल 8 माइनस 3 इक्वल 5। आप देखिए ए का वैल्यू भी निकाल लिए और रिमाइंडर भी निकाल लिए दोनों इक्वेशन में। और क्वेश्चन था मेरा कि रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, तो रिमाइंडर भी सेम बचा। तो इस ढंग से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। हम रिपीट करते हैं कि जब भी स्टार्टिंग में जो हम बताए थे कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। और फर्स्ट जिससे आपको डिवाइड करने के लिए कहेगा x - 2 x + 5 जो भी एक्सप्रेशन से डिवाइड क्वेश्चन से डिवाइड करने के लिए कहेगा उसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को जिसमें डिवाइड करना है उसमें पुट करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा वही मेरा रिजल्ट। ओके चिल्ड्रन, आप लोग एक्सरसाइज बना के देखिएगा, हम क्वेश्चन देंगे, एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ओके बाय।